Journal is always prepared in the books of proprietor, which means the one who is running the business. As per our syllabus and in general, हम लोग जो journal कर रहे हैं वो है double entry journal. Double entry journal, which means that there will be, when you write, there will be two lines. One side will represent the debit side, like, and the second line will be the line for credit side. So when I give you example, you will understand. Now, for the beginning level or for the beginner level, you can understand debit is for something that comes into the business, and you will credit it if something goes out of the business. At the beginning level, this is what you will try to follow. Mainly for nominal accounts, we do these. For example, अगर कैश आता है तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट. कैश कैसे आ सकता है? तुमने सपोज, तुमने मतलब जो प्रोप्राइटर है, he has sold certain goods. When he sells certain goods, then goods go out and cash comes in. So goods go out, this is called sale of goods, and cash comes in. So we say that इसका जो journal entry होगा वो होगा cash account debit. We'll write the amount here, for example 1000 rupees. In the next line you will leave some space. Start from here and write to sales account and the same amount if it is the same amount. Now this means this is a journal entry. Okay, this is a journal entry. It means that cash account has been debited. So cash has come into the business. 1000 rupees cash has come into the business. And cash has come because of sales. So goods have gone out. Now, under this proprietor, there is a junior employee. This employee gets wage from him, wage or salary. So when the time comes, the proprietor or the business person, the businessman out of the business will give him cash. So cash will go out. This cash will go out due to the employment service that he is providing. And so this cash will be debited or credited against wages or salary. If the word wages is given in the sum, then you will use wages. And if the term salary is given, you will use the term salary. So the journal entry for this will be, please note कि cash मेरा आ रहा है या जा रहा है. जब businessman cash pay कर रहा है as a part of salary, तो cash आ नहीं रहा, cash जा रहा है. So in this case, cash account will not be debited. In this case, cash account नीचे आएगा, तो नीचे में लिखोगे to cash account. मान लो 5000. सर आप एक बार ऊपर का दिखाइए ना, थोड़ा कॉपी करना है. हाँ, एक सेकंड दिखा रहे. द डेबिट आइटम, जो डेबिट आइटम है, इस पे ऑलरेडी हम तुम लोगों को नोट्स भेज चुके हैं. तुम लोग वो तो कॉपी किए नहीं हो, अब यहाँ से कॉपी करने जा रहे हो.
हम जो नोट्स भेजे थे वो कॉपी किए थे अकाउंट्स का जो हम सर notes वो भेजे कॉपी कर ये करना है वापस से, वो कर लिया हम। हाँ ये तो करना है, बट वो अगर किए हो तो तुमको समझ में ऑलरेडी आ जाएगा हम जो बोलना चाह रहे हैं। हाँ वो तो तो अभी अभी जब कैश जा रहा है तो कैश किसके अगेंस्ट में जा रहा है? कैश जा रहा है वेजेस के अगेंस्ट में, मतलब कैश जो जा रहा है वो किस नाम पे जा रहा है? तुम्हारे घर पे भी अगर तुम्हारे पेरेंट्स को हिसाब लिखते हैं ना, तो लोग हिसाब लिखते होंगे ना, जैसे कि अगर कोई चीज पैसा जा रहा है तो किस चीज में जा रहा है, एक हिसाब लिखते होंगे। सपोज अगर कोलगेट खरीद रहे हैं तो सर लिखते होंगे कोलगेट 100 रुपया, ऑयल 500 रुपया। तो ये जो होता है ये तो कैश आउटफ्लो है, लेकिन ये किसके अगेंस्ट हो रहा है ये लिखा जाता है। तो ये तो रफ हिसाब है, लेकिन अगर इसको हम जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो कैश जा रहा है वो तो लिखेंगे, लेकिन किसके अगेंस्ट जा रहा है वो यहाँ पे लिखोगे। तो कैश यहाँ जा रहा है वेजेस के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे लिखोगे वेजेस अकाउंट डॉट डॉट डी आर 5000। तो ये लिखने का स्टाइल है। डीआर क्यों लिख रहे हैं? हाँ ये लिखने का स्टाइल है। देखो फर्स्ट लाइन को डेबिट लाइन बोलते हैं, सेकेंड लाइन को क्रेडिट साइड बोलते हैं। ये लिखने का स्टाइल है कि जो फर्स्ट लाइन जब लिखते हैं हम लोग तो हम लोग अकाउंट का नाम लिखेंगे, AC मतलब अकाउंट, C स्मॉल होगा, डॉट डॉट दोगे और फिर DR लिखोगे। DR इज डेबिट कॉलम और डेबिट साइड। फिर 2 लिखोगे, 2 के बाद अकाउंट का नाम लिखोगे, डॉट डॉट नहीं दोगे, CR नहीं लिखोगे। यहाँ पे CR इंप्लाइड है, तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। दैट इज व्हाई यहाँ डेबिट DR लिखते हैं, DR फॉर डेबिट, लेकिन यहाँ CR नहीं लिखते, यहाँ 2 लिखते हैं। सर ये करते करते आदत पड़ जाएगा। समझ नहीं आया। सर बैंक का जो पासबुक में जैसे लिखा रहता है वैसा है क्या ये? हाँ हाँ, लेकिन बैंक का पासबुक का उल्टा रहता है। बैंक का पासबुक अच्छा। में जब पासबुक में पैसा आता है तो वो क्रेडिट होता है, तो वो छोड़ दो फिलहाल। एक बार ये देखो, हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा शुरू में। एक बार ये कॉपी कर लो, आई एम गिविंग यू लाइक 2 मिनट्स, 1 मिनट। ठीक है, जर्नल में तुमको 2 चीज लिखना है। जैसे कि जब तुम घर पे हिसाब करते हो 2 चीज 2 बार लिखते हो ना, अमाउंट भी लिखते हो कितना कैश जा रहा है। 100 का मतलब क्या होता है कि 100 रुपया कैश जा रहा है, ये लिखते हो ना 100 का मतलब। और ये जो है इसका मतलब आइटम का नाम। यहाँ भी 2 चीज लिखते हैं हम लोग, 2 कॉलम वाइज लिखते हैं। तो यहाँ पे हमेशा जर्नल में डबल एंट्री होता है, यानी एक ऊपर में और एक नीचे में। तुम यहाँ पे ये तो लिख रहे हो कि वेजेस पे किए, बट वेजेस कैसे पे किए वो यहाँ पे लिख रहे हैं हम। मेरा बात समझ गए? तुम तो वेजेस को काइंड में भी पे कर सकते थे। अगर तुम 5000 वेज को कैश में नहीं देके 5000 का उसको कार दे देते या बाइक दे देते, तो यहाँ लिखते टू कार अकाउंट टू बाइक अकाउंट। अगर उसको 5000 का एक पुराना चेयर दे देते तो यहाँ लिखते वेजेस अकाउंट टू चेयर अकाउंट या टू फर्नीचर अकाउंट। सो कैश बेसिकली टेल्स कि इतना वेजेस हुआ है और इतना पूरी कैश उसको दे दिया है। अंडरस्टूड थोड़ा सा? हाँ सर, मतलब वो वेजर को अकाउंट में लिखने के लिए वो डीआर लिखा है और फिर कैश में दिया तो उसके लिए लिखा है। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर if the proprietor Mr. X buys goods of rupees 10,000 for cash and then sells them for rupees 12,000 against check, comma, pass the, ये कॉपी कर लो, pass the entries यानी journal entries for purchase and sale। ये क्वेश्चन एक बार कॉपी कर लो। सर मतलब 2000 का प्रॉफिट हुआ उसका। हाँ, लेकिन हम लोग अभी प्रॉफिट लॉस ये सब नहीं करेंगे। प्रॉफिट लॉस वगैरह जो है डिटेल्स में क्लास 10 में आता है।
अभी तुम सिर्फ सिंपल जर्नल करो, स्टेप बाय स्टेप करो, एक बार में वो सब मत करो। मतलब सर मतलब ये जो मान लीजिए मतलब सर 10,000 का वो खरीदा और 12,000 में वो बेचा, तो उसका 2,000 जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ जाएगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो वो हम लोग अभी नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छा। अभी नहीं करने का जरूरत है, वो बाद में करेंगे। अच्छा, इसका फॉर्मेट जो है वो इस तरह से है। तुम यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले, अगर इसको प्रॉपर्ली करना हो तुम यहाँ लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, बुक्स माने खाता, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, जो मेरा प्रोप्राइटर है उसका, उसके बुक्स में लिखो। फिर ब्लॉक में लिखो जर्नल। सर आप वो क्या उसके लिखे? बाद एंट्रीज फॉर परचेज एंड सेल। सर ये वो क्वेश्चन वाला पार्ट जो है तो एग्जांपल वाला जो था। अच्छा, एक बार ये कॉपी कर लो। अच्छा, ये मेरा 5 कॉलम्स है, सर ये 5 मेन कॉलम्स है, ये फॉर्मेट है। सर क्वेश्चन अगेंस्ट चेक कॉपी हो मतलब गया? कैश में? नहीं, चेक से। चेक से, अच्छा। माने वो उसने 12,000 बेचा, उसे 12,000 में बेचा ना सामान, बट उसको कस्टमर ने चेक दिया है, कैश नहीं दिया। सर एक क्वेश्चन है, अब वहाँ क्या लिखे सर? एलएफ के बाद में अमाउंट ए, अमाउंट ब्रैकेट में रुपीस, अमाउंट वापस से ब्रैकेट में रुपीस। अच्छा, एक चीज और है, तो इस दो बार अमाउंट के अच्छा ऊपर 2 बार। लिखोगे, हाँ हाँ, यहाँ पे डीआर लिखोगे, यहाँ सीआर लिखोगे, यानी ये अमाउंट डेबिट के लिए है, ये अमाउंट क्रेडिट के लिए है। क्वेश्चन यहीं तक था, ये सॉल्यूशन इस तरह से करोगे। ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, जो भी प्रोप्राइटर का या बिजनेस का नाम दिया हुआ है, फिर जर्नल लिखोगे बोल्ड में, ब्लॉक में, फिर डेट पर्टिकुलर, एलएफ मतलब होता है लेजर फोलियो, ये ब्लैंक छोड़ोगे अभी, अमाउंट अमाउंट। हम लोग को 2 एंट्री करना है, पहला एंट्री परचेस का है और सेकंड एंट्री सेल का है। पहला एंट्री बोलो मेहुल। सर तो डेट क्या, वो डेट खुद दिया होगा, डेट बोलना डेट पड़ेगा अगर तो? नहीं दिया हुआ है, अगर डेट नहीं दिया हुआ है तो डैश छोड़ दोगे या क्वेश्चन मार्क दोगे, डैश दे दो। अगर डेट मेंशन नहीं किया हुआ है कि उसने कब खरीदा, मेंशन नहीं किया है, तो डैश दे दो या क्वेश्चन मार्क दे दो। अब एंट्री कैश यहाँ पे हम अकाउंट, लिखेंगे जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट, कैश आ रहा है, हम जब परचेस करेंगे, यानी हम मतलब कैश जा रहा है। कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट क्यों होगा? वो तो नीचे आएगा। हाँ, ऊपर आएगा ये बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों आएगा? पहले सेल मत करो, पहले तुम सिर्फ यहां से यहां तक का करो, पहले सिर्फ ये वाला पार्ट करो, यहां से लेके यहां तक, इसको बाकी चीज हटा सर दो। वो गुड्स कब खाली होगा? गुड्स फॉर रुपीज खाली 10,000। ये पार्ट बोलो, क्या चीज आया है पहले वो बताओ। सर गुड्स आया फॉर Goods। 10,000 रुपीज। जब गुड्स आएगा तो हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? कैश को करेंगे क्या? हाँ सर, जो चीज आता है कैश उसको डेबिट परचेज, करते हैं। परचेज अकाउंट। हाँ, जब गुड्स खरीदोगे तो कैश को डेबिट नहीं करोगे, कैश तो आ नहीं रहा, कैश तो जा रहा है। क्या चीज आ रहा है? गुड्स आ रहा है। जब गुड्स आता है तो हम लोग परचेज अकाउंट लिखते हैं, मतलब हम लोगों ने परचेज किया है, तो इस तरह लिखोगे परचेज अकाउंट, फिर डॉट डॉट दोगे और डीआर लिखोगे। उसके बाद नीचे एक लाइन, थोड़ा नीचे जाओ, थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, यहाँ 2 लिखो। अब कैश हम लोग का जा रहा है टू कैश अकाउंट, इस तरह से। देखो ये क्लियर है? अभिरूप, विवेक, परचेज अकाउंट डेबिट। शिवांश तुम देख रहे हो? परचेज अकाउंट डेबिट यानी हमने गुड्स खरीदा है। whenever goods are purchased, सर लिख रहे whenever हैं। goods are purchased, यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, और हमने कैश पे किया है तो टू कैश अकाउंट लिखोगे, क्योंकि कैश चला गया है। अब परचेज कितना का किया है? 10,000 का, और कैश कितना दिया है? 10,000। तो
परचेज का अमाउंट यहाँ लिखो, कैश का अमाउंट यहाँ लिखो, दोनों सेम होगा। अच्छा शिवांश क्लियर है? सर ये LF क्या हुआ? हाँ सर क्लियर है सर, लिख ही रहे थे आप। हाँ लिखो। LF का सर- मतलब है लेजर फोलियो, और इसको कुछ नहीं करना, ब्लैंक करना। एक्चुअली इसका मतलब है कि लेजर जब करोगे समझ में आएगा। यहाँ पे बस नंबर लिखते हैं कि ये जर्नल हम लोग कौन से लेजर के पेज में, जैसे पेज नंबर होता है ना, वो यहाँ लिखते हैं। समझ गए अच्छा। कि ये जर्नल को कौन से लेजर के कौन से पेज में रिकॉर्ड किया गया है। तो ये तुम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डैश छोड़ देना है, या फिर हो सकता है मन में स्कूल में बोले कि मन से कुछ भी पुट कर दो, 8 1 2 ऐसे कोई भी पेज नंबर की तरह पुट कर दो। तो ये कुछ करने का जरूरत नहीं है। अच्छा इसका नरेशन देना पड़ता है, तो नरेशन हमेशा स्टार्ट करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे, बीइंग से स्टार्ट करोगे हमेशा, बीइंग। ये किस लिए हम लोग ये जर्नल लिखे हैं, अपने आप को याद दिलाओ। अब ये अगर ये प्रोपराइटर इस बुक को, अकाउंट को खोलेगा 2 साल बाद, तो उसको तो याद रहना चाहिए ना कि ये क्या हुआ था। तो यहाँ लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। जर्नल छोटा सा होगा, 5-6 वर्ड का, और स्टार्ट हमेशा बीइंग से होगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। सर वो लेफ्ट में जो आप लिखे हैं ना, लेफ्ट में 2 अमाउंट लिखे आप, तो एक में क्या लिखे आप, दोनों में नीचे में दोनों क्या में लिखे आप? 10,000 रुपीस। हाँ हाँ राइट, क्योंकि हम लोग इंडियन करेंसी के हिसाब से कर रहे हैं। तुम ये रुपीस के बदले ये भी लिख सकते हो, रुपीस का साइन होता है ना, कौन सा र जैसा, ऐसा कैसा होता है स्कूल में, याद नहीं मेरे को, वो भी हाँ लिख सकते सर। हो। तो आजकल कई बार स्कूल में वैसे वो साइन देने बोलता है, लेकिन वरना RS रुपीस। सर ये मालूम है सर, ये वाला जो चीज है ना जर्नल, ये मेरे ख्याल से हम लोग को अकाउंट्स में करा रहा है, अकाउंट्स बोल रहा है, इकोनॉमिक्स में करा रहा है। नहीं नहीं, ये इकोनॉमिक्स में नहीं कराता, ये कॉमर्स में कराता है। सर इकोनॉमिक्स में भी ऐसा कुछ बना के कुछ है? होगा, बट एक्चुअली ये अकाउंट्स कॉमर्स का पार्ट है। लेकिन जो भी ये फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारा, तुम तो 11 में तो कॉमर्स लोगे ना, तो उसमें तुम्हारा अकाउंट्स एक अलग सब्जेक्ट होगा। हाँ सर। अच्छा अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं, विच इज ये वाला पार्ट। आफ्टर दैट मे बी वो हो सकता है 4 दिन बाद या 10 दिन बाद, वो डेट नहीं पता हम लोग को, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उसको सेल कर रहा है फॉर 12,000 अगेंस्ट चेक। अब वो जब सेल कर रहा है तो उसके पास पैसा आ रहा है और उसका माल जा रहा है। तो जब पैसा आ रहा है तो तुम कैश अकाउंट डेबिट करोगे, अंडरस्टूड? when he is selling, he or she, when he is selling, then सेल्स अकाउंट होगा ये, जैसे लास्ट एग्जांपल में हुआ था। एंड इट इज सर और अगेंस्ट, यहाँ डॉट 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 CR होगा ना? हम लोग CR नहीं लिखते हैं, हम लोग ये हमेशा ऊपर में DR लिखते हैं, नीचे कुछ नहीं लिखते, नीचे 2 लिखते हैं। 2 का मतलब ये है कि ये क्रेडिट अकाउंट है। सर हम दूसरे वाले का बात कर रहे हैं, 12,000 वाला। CR नहीं होता है। तुमको बस सोचना है कि मेरा पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, वो बताओ मेरे को खाली। आ रहा है। आ रहा है, तो इसका मतलब है जो कैश वाला ट्रांजैक्शन है वो ऊपर में होगा, डेबिट साइड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से डेट की जगह डैश दे दो। अब यहाँ एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या होना चाहिए, अभी लिखना मत, होना चाहिए कैश अकाउंट अगेन डेबिट, ये स्टाइल है लिखने का, बार बार बोल रहे हैं, टू सेल्स अकाउंट। ये स्टाइल है, यहाँ डॉट दोगे, DR दोगे, यहाँ 2 दोगे। लेकिन एग्जैक्टली ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैश मेरे पास आ ही नहीं रहा है, मेरे पास चेक आ रहा है, इसलिए कैश के जगह, बैंक अकाउंट होना चाहिए ना। हाँ कैश के जगह बैंक होगा।
क्योंकि पैसा मेरे पास कैश फॉर्म में नहीं आएगा, मेरे बैंक में जमा हो जाएगा, मेरे पास नकद या लिक्विड कैश नहीं आएगा। समझ गए? मेरे जो दुकान से वो बेच रहा है, दुकान में कैश नहीं आएगा, सीधा बैंक में जमा होगा, तो बैंक का खाता बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। तो यहाँ पे लिखोगे, ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट कैपिटल ए स्लैश स्मॉल सी डॉट 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 DR, फिर टू थोड़ा स्पेस देके और एस कैपिटल सेल्स अकाउंट, वैसे ही अमाउंट 12,000 लिखोगे दोनों जगह, यहां भी और फिर यहां भी। सर और नीचे में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सेल फॉर चेक। बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक। फॉर चेक भी लिख सकते हो, यहाँ पे तुमको ग्रामर के लिए कोई पेनलाइज नहीं करेगा, तुम इंग्लिश में एरर कर सकते हो, बट बीइंग गुड्स सोल्ड होगा, सेल नहीं होगा, सोल्ड। अगेंस्ट सर ग्रामर में ही हर समय मिस्टेक होता है। तो नीचे ब्रैकेट में लिखो बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक। सबसे पहले तुम लोग को जो समझना है वो है कि मोस्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शंस विल इन्वॉल्व कैश या बैंक, यानी क्या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। अगर पैसा आएगा तो तुम कैश को डेबिट करोगे या बैंक को डेबिट करोगे, जैसे इस केस में हुआ है। और अगर हम पैसा पे कर रहे हैं, मतलब अगर मिस्टर एक्स पैसा पे कर रहा है, तो फिर कैश अकाउंट नीचे आएगा, और अगर बैंक चेक से पे कर रहा है तो नीचे टू बैंक अकाउंट आएगा। ऑपोजिट एंड में वो चीज आएगा जिसके बदले हम लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। सर मेरे को राइट हैंड साइड वाला समझ नहीं आया, वो अमाउंट वाला। इसमें तो कुछ नहीं करना है ना, खाली बस अमाउंट कॉपी कर देना 2 बार। मतलब सर दो जो अमाउंट रहेगा उसको बस उधर भी और इधर भी हाँ, सेम लिखना है ना? हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि अभी अभी तुम लोग का सेम ही रहेगा। कुछ दिन बाद जब थोड़ा और हार्डर जर्नल करोगे तब आई विल टेल यू कि कभी कभी सेम नहीं भी होता है। अब सेम कब नहीं होता हम तो अभी बता देते हैं। इनफैक्ट ये थोड़ा हार्ड होगा बताना। सपोज जैसे कि मिस्टर एक्स purchased goods of rupees 2,000 but paid rupees 1,500 in cash। सर ये भी कॉपी करना है कि नहीं? हाँ करना है। and rupees 500 by check। इसका सिर्फ हम जनरल बता दे रहे हैं, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। Mr. X purchased goods of rupees 2,000 but paid rupees 1,500 in cash and rupees 500 by check। What will be the journal entry? सर हम एक बार ट्राई करें। हाँ तुम लोग ट्राई करो, हम 1 मिनट देते तुम लोग को। टू बैंक अकाउंट क्या बोलते हैं 1,500 टू कैश अकाउंट 500। अच्छा यहाँ पे लिखोगे परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट कितना का परचेज हुआ है? 2,000 का, तो अमाउंट आएगा 2,000। टू कैश अकाउंट, कैश कितना पे किया हम लोग? 500। नहीं 1,500 कैश पे किया है।
और बाकी जो 500 है वो चेक से पे हुआ है। तो टू बैंक अकाउंट 500। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग परचेस किए 2000 का माल, तो ये तुम्हारा टोटल डेबिट है। बट जो क्रेडिट हो रहा है वो दो अलग अलग तरीके से हो रहा है। कैश जा रहा है 1500 और चेक से पैसा जा रहा है 500। तो इस तरह के, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। यानी तुम्हारा जो जर्नल एंट्री है उसमें दो जन नहीं है, दूसरा वाला स्प्लिट किया हुआ है। तो एक तो ये आंसर हो सकता है, या फिर इसको जैसे मेहुल ने कहा इसको स्प्लिट करके भी कराता है, क्योंकि तुम अभी नया नया स्टार्ट किया हो। तो अगर कंपाउंड एंट्री नहीं करना है, दो अलग अलग एंट्री करना है, तो इसको इस तरह से किया जाएगा। तुमने परचेस किया, कैश देके कितना परचेस किया तुमने? तुमने कैश देके 1500 परचेस किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट 1500, कैश 1500 एंड, और सेकेंड एंट्री लिखो परचेज अकाउंट 500 टू बैंक 500। हाँ, इस तरह से। तो ये दो तरीका है करने का, ठीक है। अगर ये है दो अलग अलग वे में करने का, मैंने दो जर्नल एंट्री लिख रहे हैं हम लोग। और अगर कभी कभी बोलता है कंबाइन देम इनटू अ सिंगल जर्नल एंट्री, तो इसको अगर कंबाइन करोगे तो ये आ जाएगा, विच इज नोन एज कंपाउंड एंट्री। प्लीज ये दोनों चीज समझ लो और दोनों चीज कॉपी करो। इफ दे आस्क यू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री, तो ये आंसर होगा। एंड इफ दे आस्क यू टू पास सेपरेट जर्नल एंट्रीज, तो फिर ये होगा। इवेंचुअली आज से 6 महीना बाद या 1 साल बाद तुम यही करोगे, ये कभी नहीं करोगे। ये सिर्फ बिगिनर्स लेवल को कराया जाता है, सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे अलग अलग हो रहा है। देखो ये पार्ट समझ में आया आदित्य तुमको, अभिरूप और शिवांश? हाँ सर समझ आ गया। हाँ सर, समझ गया सर। शिवांश आर यू स्टिल देयर? तुम नॉर्मली निकल जाते हो 15-20 मिनट बाद। अच्छा, सर क्लियर है। गुड। तो ये है एक्चुअली कंपाउंड एंट्री। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ कंपाउंड, और प्लीज तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये हम बाद में कराएंगे भी, कि थ्योरीज अलग से है। तुम लोग का चैप्टर में थ्योरी क्वेश्चंस अलग से है, और वो आता है जैसे व्हाट इज अ जर्नल एंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड एंट्री, वो लिखने भी आता है। लाइक अभी तो जो करें प्रैक्टिकल सम्स है, बट थ्योरी क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बैलेंस शीट, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, what is the meaning of debit account, what is, ये लिखने भी आता है क्वेश्चन आंसर्स में। समझ गए? तो वो अभी समझ लो तो वो समझने में आसानी रहेगा जब बुक से पढ़ोगे। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हम और दे रहे हैं। हाँ, वो सब चैप्टर्स में है, थ्योरी चैप्टर बुक में लिखा हुआ है। तो अभी तुम लोग अगर घर में, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ओवर द वीक तुम लोग थोड़ा घर पे वो थ्योरी को पढ़ना प्लीज। अब जैसे एक क्वेश्चन और लिखो, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। आई एम अ बिट सिक टुडे, हम जल्दी छोड़ देंगे। जैसे कि मिस्टर राम, ये हम लोग का प्रोप्राइटर है, started a business with the capital of rupees 50,000 on 1st May 2020. He purchased goods worth rupees 28,000 for cash on 3rd May.
Mr. Ram started a business with the capital of rupees 50,000 on 1st May 2020. He purchased goods worth rupees 28,000 for cash on 3rd May. On 5th May, he sold all the goods to Mr. Rahul on credit, udhar. On 10th May, Mr. Rahul paid the full in cash. अब अपना पांचों कॉलम बनाओ, ये कॉपी करो, पांचों कॉलम बनाओ, फिर मुझे बताओ. ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे कॉलम्स बना दे रहे हैं, जो भी है, डेट, पर्टिकुलर्स, हमेशा पर्टिकुलर्स कॉलम थोड़ा बड़ा करना, ठीक है, ये सबसे बड़ा कॉलम होगा, तो ये थोड़ा ब्रॉड रखना. फिर एलएफ एकदम जब ये स्केल से करोगे तो एलएफ एकदम पतला सा करना, क्योंकि उसके लिए पेज वेस्ट नहीं कर सकते. उसके बाद होगा अमाउंट रुपीस और फिर वापस से अमाउंट रुपीस. ठीक है, अब यहाँ पे डेट दिया हुआ है, तो फर्स्ट में यहाँ पे लिखो. अभी तुम लोग डेट तुम लोग कैसे भी लिख सकते हो, तुम लोग यहाँ लिख सकते हो. हम लोग एक बार वो वाला फॉर्म ले लेते हैं, 1st May 2020, ये वाला फॉर्म एक बार लिखते हैं टू बी मेक इट इजी. जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, यानी कैपिटल से स्टार्ट होगा, तो उसका एंट्री मेमोराइज कर लो. वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सर इसमें मिस्टर राम का नाम नहीं लिखने का? हाँ, वो नरेशन में लिखेंगे. हाँ सॉरी, ऊपर लिखना पड़ेगा, राइट. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम ऑफिस जर्नल. जर्नल को प्लीज कैपिटल लेटर्स में लिखना. तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये मेरा पहला एंट्री है. इसका मतलब है कि कैश इन्वेस्ट किया है मिस्टर राम ने एज कैपिटल. ये जो कैश है, ये मिस्टर राम अपने घर से लेके आया है, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश. ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे अमाउंट दे दो 50,000 और यहाँ पे फिर से 50,000. ब्रैकेट में लिखो बीइंग कैश इन्वेस्टेड, सॉरी, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस. बस, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, ये करो. आगे एक बार ट्राई करो, आगे का पार्ट ट्राई करो, देख रहे हैं. हाँ, अंदर आ जाओ, अंदर बैठो, बैठो बैठो, दिख रहा है, आ जाओ. आगे का ट्राई करो तुम लोग. हाँ सर.
अभिरूप। जब मिस्टर राहुल को पूरा गुड सेल किया तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? परचेज अकाउंट डीआर एंड सेल्स अकाउंट। हाँ दिखा रहे हैं। सेकेंड जो पार्ट है वो है ये, वो परचेज कर रहा है कैश में, तो इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो परचेज का तो ये वाला होगा। हम नरेशन नहीं लिख रहे, तुम लोग बस अपने आप लिख लेना। इसके बाद है 5 मई को वो सेल कर रहा है क्रेडिट में। हाँ, ये तुम लोग को शायद नहीं आएगा, तो 5 मई का लिखोगे। ही ये सेलिंग द लिखना गुड्स सेल्स टू अकाउंट टू राहुल अकाउंट। सर 5th हो गया, 10th भी हो गया। 5 का क्या लिखे हो? सेल्स अकाउंट टू राहुल अकाउंट। सर हम बोले सेल अकाउंट नीचे आता है हमेशा। सेल जैसे परचेज अकाउंट हमेशा ऊपर आता है, सेल्स अकाउंट हमेशा नीचे आता है। तो तुम एंट्री करेक्ट लिखे हो, बट राहुल ऊपर आएगा, सेल्स नीचे जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं मिला है, मैंने राहुल को उधार पे दिया है, तो हाँ, राहुल सर। का नाम आएगा, क्योंकि वो लिखना चाह रहा है, वो लिखना चाह रहा है कि राहुल के नाम पे सेल हुआ है। नहीं, ये 9 का है, तो ये एक्चुअली सर मैं वो समझ रहा नरेशन क्या लिखूं? थर्ड में परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, उसमें यहाँ पे तो अमाउंट नहीं लिखे हम, सॉरी। यहाँ पे अमाउंट ऐड कर दो ना, ऑन क्रेडिट के बाद ऐड कर दो फॉर 35,000, ये ऐड कर दो। ठीक है, ये ऐड कर दो, अमाउंट ऐड कर दो, और यहाँ पे लिख दो 35,000। नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल, या राहुल मत भी लिखो चाहे, ऑन नहीं सर, उसके लिए क्या बोलते हैं? थर्ड में परचेज अकाउंट डीआर, being goods sold, हाँ उसके लिए। being goods purchased on cash, being goods purchased on cash या for cash, being goods purchased for cash। नरेशन कोई बड़ा बात नहीं होता, वो तुम कुछ भी लिख दोगे चल जाएगा, तुमको बस 3-4 वर्ड लिखना है, यहीं से कॉपी कर दो चल जाएगा, खाली बीइंग से स्टार्ट करना। और ये इंपॉर्टेंट एंट्री है क्योंकि ये क्रेडिट सेल है, तो राहुल का नाम आएगा। और उसके बाद 10th मई को राहुल जो है कैश पे कर रहा है। राहुल कैश पे कर रहा है। उसमें लिखेंगे बीइंग कैश पेड बाय राहुल, कैश रिसीव्ड बाय राहुल, बीइंग कैश रिसीव्ड बाय राहुल। सर तो 2 में क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया टू राहुल अकाउंट, क्योंकि अब राहुल का नाम हम कैंसिल कर दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने राहुल का नाम डेबिट किया था, क्योंकि राहुल का नाम मुझे नोट करना था कि राहुल से पैसे लेने हैं। अब इसको हम जब क्रेडिट कर रहे हैं तो ये कैंसल आउट हो जा रहा है कि राहुल का नाम काट दो, पैसा मिल गया है। समझ गए? सर ये जब अमाउंट लिखियो 35,000 उससे पैसा लेना है। हाँ, 35 फुल पैसा सेम अमाउंट आएगा। उसने 35,000 थोड़ी ना दिया था वो, लिखा हुआ तो पेड द फुल इन कैश। मैंने बोला ना यहाँ ऐड कर दो, ऑन 35,000 ऐड कर दो। ओके हम ध्यान समझ गए? और लिखो बीइंग कैश रिसीव्ड बाय राहुल, फ्रॉम राहुल। सर मैं आपको एक बार जो मैंने किया वो एक बार भेजा हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए। तुम बोलो क्या भेजे, क्या किया? सर वैसे ही किया हूँ, लेकिन वो लास्ट वाला में ना थोड़ा कैश में ऊपर लिखा हूँ और क्या बोलते हैं मैं नीचे लिखा हूँ टू मिस्टर राम एसी। नहीं, राम नहीं, राम तो उसका प्रोप्राइटर का नाम है, वो खुद को थोड़ी ना बेच रहा है। राम नहीं होगा। उसको कैश कौन दे रहा है? राहुल दे रहा है ना, तो राहुल का नाम आएगा।
वो सेल किसको कर रहा है? राहुल को कर रहा है, तो राहुल का नाम आएगा। राम के बुक्स में राम का नाम कभी नहीं आएगा। समझ गए? सर हाँ। राहुल ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि राहुल के अकाउंट से कैश अकाउंट में आ रहा है राम के। नहीं, कैश अकाउंट में आ रहा है मतलब नहीं, वैसे नहीं होता। हम लोग यहाँ पे जब क्या कर रहे हैं, ये इसलिए बोले ये पर्सनल अकाउंट है। इस केस में राहुल मेरा डेटर है या क्रेडिटर है? अगर हम लोग को हमेशा सेल्स और कैश को पहले लिखना है, उसके बाद राहुल को एडजस्ट करना है। ये तो धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे। राहुल खुद को नहीं बेच रहा है, राहुल नहीं आ रहा है मेरे पास। समझ गए? तुम राहुल को डेबिट क्रेडिट का हिसाब मत रखो। राहुल मेरे पास नहीं आ रहा है कि राहुल मेरा हो गया। हम मुझे कैश मिल रहा है राहुल से, यहाँ पे मेरा गुड सेल हो रहा है राहुल को। हम लोग जब पर्सनल अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग सोचते हैं डेटर है या क्रेडिटर है। इस केस में राहुल मेरा डेटर था इसलिए डेबिट हुआ, और इस केस में राहुल मेरा डेटर था जो कैंसिल हो रहा है, इसलिए उसको उसका उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ पे रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा।